Hello everyone, my name is Saman Markarkar and welcome back to this channel. I am a second year student at BITS Pilani Goa campus and my branch is MSc Physics along with Computer Science. Now the thing is that many people are asking me many questions related to dual degree program as well as admission into BITS Pilani and I get a lot of messages on my Instagram as well as on Telegram. So that is why I made a video which you will get in a I button over here, and this video will be in continuation to the last video which I made. Many people ask me whether one should take drop or should go for dual degree at BITS Pilani. What was my case? Why did I pursue MSc course at BITS Pilani, and why didn't I consider drop option? And other than that, the people which were asking me question were like, ki should they consider taking MSc over mechanical or chemical degree at BITS, right? So first of all, let me tell about BITS Goa, right? In BITS Goa, there is no manufacturing and civil branches. So all the branches which you have are CS and Phoenix branches. Phoenix branches include Triple E, ECE and ENI, and other than that we have just mechanical and chemical. So the people have question in mind, should they take up mechanical or chemical, or should they choose dual degree program and try for higher cutoff degree, right? See, this main reason is what you want, right? What was in my case was like कि जब COVID आया था, so I couldn't perform my best. In my January attempt, I took it casually. After the January attempt and after the board exam, lockdown happened. और जब COVID आया तो postponement इतना हुआ कि the JEE exam got postponed from April to July and then to September. And in September, NTA just ruined the result system. एंड आई हैड जस्ट वन थिंग इन माई माइंड कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा. लास्ट टाइम जनवरी में मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया और मुझे अपना बेस्ट देना था. आई जस्ट वॉन्टेड कि मुझे वो ब्रांच चाहिए जो मैं चाहता हूँ. एंड वेन आई वॉज सिटिंग फॉर काउंसलिंग आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू नो कि ऑब्वियसली मेरी परसेंटाइल कम थी, एंड दैट इज़ वाई आई couldn't get the particular BE degree which I want in any of the institutes, right? In good institutes. And now talking about drop versus dual, what I had in my mind is कि मुझे drop लेना है. I was 85% sure कि मुझे drop लेना है. I talked to many seniors, I talked to many people on who study in BITS. I talked to many people who took drop and did wonderful, okay? But the last thing which stopped me from taking drop was कि COVID अभी आया है एंड वी डोंट नो कि कोविड कब तक चलेगा, राइट? कोविड 2020 में आया एंड हर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया. NTA wasn't ready, CBSE wasn't ready, our education system wasn't ready for the new change, and so स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ. एंड जब मैं फिर से उस बारे में सोचता था कि ओके अगर मैं अगले साल फिर से अटैम्प्ट दूंगा एंड अगर सिमिलर सिचुएशन रही, वो नोज़ NTA ने ऑलरेडी इतना ख़राब कर दिया था सिस्टम, और अगर मैं फिर से अटैम्प्ट दूँ और फिर से कुछ बुरा हो जाए मेरे साथ तो. और दूसरी चीज़ थी, अगर कोविड नेक्स्ट ईयर भी रहता है तो, अगर नेक्स्ट ईयर भी पोस्टपोनमेंट हो जाती है तो. सो दीज 2-3 रीजन्स वर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं बहुत डरने सा लग गया था कि हाँ अगर कुछ ऐसा होता है सो मेन थिंग विल बी कि मैं अपना साल वेस्ट कर दूंगा और मैं अपना बेस्ट फिर से नहीं दे पाऊँगा. एंड अगर मैं फिर से ड्रॉप लेने के बाद मैं उन्हीं कॉलेजेस में जाता हूँ जिन कॉलेजेस में मुझे सीट मिल रही थी, क्या होगा? वर्थ होगा? क्योंकि मैं पूरा साल अपना इन्वेस्ट करूँगा फिर से जेई प्रिपरेशन में, एंड अगेन आई विल बी टेकिंग अप द सीट्स जो मुझे एक साल पहले ही मिल रही थी. सो विद इन माई सेल्फ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये वर्थ नहीं होगा बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. और अगर मैं साल भर लगा दूँ एंड देन वापस वही चीज़ आ जाए, वो नोज, ठीक है, मे बी मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाता. सो आई हैड टॉक टू मैनी पीपल फ्रॉम बिट्स पिलानी ऑल्सो थ्रू फेसबुक पेजेस एंड ऑल, और मुझे जो आंसर रिपीटेडली आ रहा था वो ये था कि बिट्स का डुअल डिग्री के थ्रू CS लेना विल बी कैन बी अ लॉट ईजियर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ. बिकॉज ड्रॉप लेने के बाद आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर होल ईयर अगेन, एंड मुझे एंड डे एग्ज़ाम देना होगा और एनीथिंग कैन हैपन ऑन द लास्ट डे. मे बी मैं बीमार हो जाऊँ, मे बी कुछ कोविड फिर से आ जाए, मे बी कुछ और तकलीफ़ आ जाए, मैं एग्ज़ाम देने ना जा पाऊँ एक्सेट्रा.
मैनी रीजंस कैन बी देयर, ओके। और लेकिन अगर मैं बिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक नॉर्मल करिकुलम है, एक एग्ज़ाम होता है। अगर तुम एक आध एग्ज़ाम मिस भी करते हो या पुअरली परफॉर्म करते हो उसमें, तो तुम्हारा उससे इतना इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज मेन एग्ज़ाम्स ऐसे 1 2 3 4 10 एग्ज़ाम रहते हैं, लाइक बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और उन सब का क्यूमुलेटिव निकलता है। सो कुछ हर एक की वेटेज होती है पर्टिकुलर, और तुम जैसा परफॉर्म करते हो उस हिसाब से तुम्हारी ओवरऑल मार्क्स आते हैं। सो देर वॉज थिंग कि अगर मैं इसके अंदर परफॉर्म करता हूँ तो मैं बेटर कर सकता हूँ। और लास्ट में जस्ट बिफोर काउंसलिंग आई थॉट कि मुझे फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर कुछ नहीं मिला था, सेकेंड आइट्रेशन के अंदर मुझे एमएससी केमिस्ट्री मिली थी इन हैदराबाद कैंपस। और उस टाइम फिर मुझे लगा कि ओके, नाउ आई थिंक आई शुड टेक अप डुअल, एंड मुझे ड्रॉप का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। और उस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि अच्छा ठीक है, इतना हो गया है, एंड नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई academics part of my first year. This is just my example, right? There are many examples over internet. There are many cases कि लोग ड्रॉप लेते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं, because you will have to pay extra money, you will have to do extra things. That's it. See, the last thing which I would like to say is कि MSc वर्सेस BE के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक और फैक्टर था कि मैं ये सोच के चल रहा था, अगर मुझे MSc के साथ CS नहीं मिलती, अगर मुझे EC मिलती, ट्रिपल ई मिलती, ENI मिलती, या फिर मुझे मैकेनिकल भी मिलती, तो मैं सेटिस्फाइड रहना चाहता हूँ। मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, मैं सेटिस्फाइड रहना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो लाइफ में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? कोई भी फील्ड हो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा होते रहेगा, ठीक है? एक मतलब सेटिस्फाइड इन द सेंस कि तुम एक चीज़ से सेटिस्फाइड रहो और दूसरी चीज़ को एम करो। इट इज़ नॉट लाइक कि तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास यही चीज़ थी कि मैं अगर बिट्स के अंदर मुझे फिनिक्स ब्रांचेस भी मिलती है तो मैं कौन सी MSc लूँ। अब यहाँ पे आई चूज़ फिज़िक्स। वाई? बिकॉज मैंने सोचा फिज़िक्स लूँगा, एंड अगर मुझे फिनिक्स ब्रांचेस में मिलती है सो आई वुड बी हैप्पी, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आई टुक इन माइंड, और मैंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया टू टेक अप बिट्स डुअल। बहुत लोगों के लिए ये डिसीजन डिफरेंट भी हो सकता है, नेगेटिवली भी आ सकता है, बट वॉट आई वुड लाइक टू से इज़ कि MSc, डोंट टेक MSc degrees just because you want CS as a dual. Don't just take MSc because you want a better BE. Because see, BE मिलना ना मिलना, all these things will depend upon कि तुम अपना कैसे consistent effort देते हो अपने फर्स्ट ईयर में। तुम कैसे अपने आप के ग्रेड्स इतने मेंटेन कर पाते हो कि वो एवरेज प्लस रहे, सो दैट तुम्हारी पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर हो जाए पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। Okay, this time I will also talk about the free time which people get in MSc or BE degree. See, as I told you in the last video, we have in third year MSc and BE both courses. So it becomes a little bit hectic as compared to what people are doing in BE degree, right? So BE degree 4 साल की होती है और MSc degree 5 साल की होती है, and because we are doing 2 degrees together, so हमारी डिग्री थोड़ी सी hectic हो सकती है। So free time हमें कम मिलेगा as compared to a BE degree student. So if we compare ourselves to a BE degree student, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा if he is trying to pursue some different courses, if he is trying to take up minor course also, if he is trying to do some different thing apart from academics, so उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा as compared to BE, because हमारे courses ज़्यादा होते हैं। हमारे में खाली slots भी अगर रहता है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कोर्स फिट हो जाएगा, बिकॉज हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोर्सेज कंप्लीट करने रहते हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज़ टेल अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शंस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू गॉट सम इन्फो फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डाउट है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी ओवर द टेलीग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे भी तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द